Okay. So we have learned like what all dhan yog we have. So now we need to understand the second dhan yog which the Aries Lagna people have. If the sun is sitting in the fifth, if sun is sitting in the fifth and the Mars and the moon is sitting in the 11th. So now you try to connect. So Sun for Aries Lagna, Sun is an important planet. Your in any case, if the fifth house is an exalted one, because fifth house is an exalted one means that from the past life you are carrying some positive energies. So from the past life you are carrying the positive energies. That means you are going to get the dhan in this life. And when it comes to the Aries Lagna people, so Sun is an important planet for them because for the Aries Lagna, the Sun and the Jupiter is your योग कारक too. तो आपका खुद का योग कारक अगर exalted position में बैठ गया है, that will be going to give you the dhan because योग कारक means the planet which give you money in the life and which give you success. So this is one of the yog that when you have an exalted sun in the Aries Lagna means your yog karak itself is exalted. Second scenario is if the Mars is sitting in the 11th house, Mars, which is again your own Lagna Lord. So first, your Lagna Lord sitting in the 11th. That means from the past life, you're carrying the energies of the money from the past life. So first lord sitting in the 11th and the moon which is connected to the fourth. So your fourth, which is again moon, when it comes to the Aries Lagna, it is owning your fourth. So the first lord and the fourth lord sitting in the 11th again give you the dhan yog. That means from the past life you have some positive yog due to which you are going to get good dhan during that dasha. Okay. The third scenario is if Venus is exalted, like for them, if the Venus is sitting in the 12th house. So Venus in the 12th house, it is Pisces. Venus in the Pisces is the exalted position of the Pisces. So second lord sitting in the 12th house, seventh lord sitting in the 12th house. So आपका second lord, but in this scenario, you will suggest client that they should work for the income is going to come away from the birthplace. If they settle down away from the birthplace, or the income is going to get from the away from the birthplace. So now the second lord is exalted in the 12th sign. That means the income is going to come away from the birthplace, and that will be a good income. So Venus is exalted for them. Next is if any planet like a positive planet sitting in the 10th house, let's say Mars for them is sitting in the 10th house. So the main your lord, so the Lagna, the first house lord sitting in the 10th house, the first when the first house lord sits in the 10th house, that means that from the past life the person is carrying the positive energies related to the career. The person will do something big in the career. Even the person have taken a birth in a small family, still after with its own hard work the person is going to get a lot of success. So here the Mangal, which is your own Lagna lord sitting in the 10th, which is in the exalted position, and even the Mars is having a directional strength here. So for the Aries Lagna, if the Mars is sitting in the 10th house in the Capricorn, again give the dhan to them. Next Dhan Yog for the Aries Lagna is if the Jupiter is sitting in the Kendra. Anywhere in the Kendra, if the Jupiter is sitting, when the Jupiter sits in the Kendra, that is an important position because for them, Jupiter is a very important planet. Jupiter is a Yog Karak for the Aries Lagna. If the Jupiter sits in any of the Kendra, that represent that the person will be going to get huge dhan in the life. As well as this is one of the scenario. The second scenario is if the person is having Jupiter as well as moon here, any of there means in any of the Kendra, if it is a Aries Lagna and the person has a Jupiter as well as a moon settled down here. Why moon? Because moon is owning for them as a fourth house, and it is when the Jupiter and moon come together in any of the Kendra, that gives you the stability and that give you a good landed property too.
If moon and Mars conjunct in the auspicious house, if the moon and the Mangal are Mars is their, it's their Lagna lord, moon is owning their fourth, which represent their dhan. Like, will the person will be able to make the landed property or the success in the life. So now Aries, it's the first lord and your fourth. Like moon and Mars का अगर कहीं पर भी conjunction बनता है आपके birth chart में, moon plus Mars, that means a Lakshmi योग. So moon and Mars in the auspicious houses. What all are the auspicious houses of the moon and Mars is a Lakshmi yoga. And for the Aries Lagna, it is making in the auspicious house. That is in the first house, second house, fourth house, fifth house, seventh house, ninth house, 10th house, 11th house. So in any of these auspicious houses, if moon plus Mars is there, that makes a Lakshmi yoga. These people get lot of dhan in the life for the Aries Lagna. If the sun and the moon are there in the auspicious house for the Aries Lagna, moon is owning their fourth, and which is most important planet for them. If these two have a good means, if these two planets are exalted for the Aries Lagna, again they will get the power. They will get the power position. Again, they are carrying a positive energies from the past life, and they will be going to get the good landed property, ghar, bangla, gadi, sab hoega, because the fourth house is become and is sitting in the good position, and the fifth lord is sitting in the good position. That means the person will do again something big in the life. The next is if the Mars is in Lagna, if the Mars is sitting in the Lagna, which is an exalted position of your Lagna Lord itself, and it is aspected by some beneficial planet, like it is aspected by Mercury, it is aspected by Venus, or it is aspected by your 10th or the 11th Lord, it is aspected by Saturn. Let's say it's aspected by the Mercury, then the person is going to get easy success in life. It is aspected by the Venus, and the person is going to get easy success in life or easy dhan in life, easy financial stability. But if it is aspected by the Saturn, anyhow, Saturn for them is owning their 10th in the 11th house. If it is aspected by the Saturn, so Saturn, wherever aspect, then it will force you to work. So wherever the Saturn aspect in your birth chart, that force you to work, like you don't want to work, still Saturn give you pressure to work, and that is how these malefic planet will be going to help you out. So when Saturn will provoke them to work, and Mangal itself is exalted, your Lagna Lord itself is exalted, आपका लग्ना लॉर्ड इतना स्ट्रांग है, अगेन दीज टू यू विल बी गोइंग टू गेट द करियर सक्सेस इन द लाइफ. इफ मार्स इज सिटिंग इन द लग्ना, if for the Aries Lagna, the Mars is sitting in the Lagna and the Venus is sitting in the 11th house. Again, the person will be having a dhan because your Lagna Lord becomes so strong, and your second Lord, again, which is connected to your income. So, second Lord sitting in the 11th. This is a dhan yoga. So, second Lord is sitting in the 11th, second and seventh Lord is sitting in the 11th. So, that is going to give you the dhan yoga. So this is all about the Dhan Yoga related to the Aries Lagna. You need to connect. You need not to learn this. आपको समझना है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर बैठा है एंड हाउ इट इज इंटरकनेक्टेड. दिस विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि बंदे के पास धन होगा कि नहीं होगा. एनी क्वेश्चन सो फार? हाँ जी. Okay, so now we need to understand the important points related to the Aries Lagna. अब एरीज लगना से कनेक्टेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अब एरीज लगना वालों का जो राजयोग मिलता होएगा वो कैसे मिलता होएगा, लाइक हाउ द पर्सन एरीज लगना कैन गेट द राजयोग. राजयोग मतलब कि क्या आपको अपनी लाइफ में सुख होगा, लाइक विल अ एरीज लगना पर्सन विल गेट द सुख. तो अब सुख के लिए आपको कौन सा हाउसेस आपको देखने चाहिए? सुख के लिए आपको देखना है सबसे पहले फोर्थ हाउस. फोर्थ हाउस का लॉर्ड है मून. अगर आपको एरीज लगना की लाइफ के बारे में देखना है तो सबसे पहले ये आपको बताता है कि आपकी लाइफ में कंफर्ट कितने हैं, आपकी लाइफ में धन होगा, लाइक आपके पास धन दौलत घर बंगला गाड़ी होगी कि नहीं होगी, ये आपको बताता है फोर्थ हाउस. तो सबसे पहले अगर आपको एरीज लगना वालों की लाइफ को देखना है तो आपको देखना है उसका फोर्थ कैसा है, क्योंकि ये आपका पूरा बताएगा कि आपके पास धन कितना ज्यादा होएगा, घर बंगला बाड़ी कंफर्ट होगा कि नहीं. तो पहला इनका राजयोग बनता है एरीज लगना वालों के लिए सन और मून कितना ज्यादा स्ट्रांग है. क्यों? क्योंकि अब इनका ये बताता है आपकी लाइफ में जॉय कितना होएगा,
आपकी लाइफ में प्लेजर्स कितने ज्यादा होंगे। तो अगर एक एरीज लगना का सन और मून डैमेज, यानी वो किसी का भी सन और मून डैमेज है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी दिस। अब मानो कि कोई एरीज लगना है, उसका सन बैठा हुआ है, लेट्स टेक अ केस स्टडी, उसका सन बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस, और फर्स्ट हाउस एरीज, सन इन एरीज इज अ पॉजिटिव सिचुएशन, अगेन अ राजयोग। क्लियर है? साथ में उसका मून भी बैठ गया है कैंसर में, बहुत बड़ा राजयोग। क्लियर है? इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. या। अब जुपिटर, और अगर जुपिटर और सैटर्न अगर कहीं पर भी साथ में बैठते हैं, अब इनका क्या है, जुपिटर इनका योग कारक है। जुपिटर इज देयर योग कारक। जुपिटर इनके में ओन क्या करता है, फर्स्ट और ट्वेल्थ। जुपिटर का मतलब क्या होता है, जुपिटर आपका खुद का योग कारक है, और सैटर्न आपका क्या है, सैटर्न आपकी लाइफ में चीजें देने वाला है। तो अब आपको जुपिटर और सैटर्न अगर आपके साथ में बैठते हैं, तो अब सैटर्न, पहले आपको एक चीज समझनी है कि एक होता है केंद्रपति दोष। व्हाट एग्जैक्टली द केंद्रपति दोष इज, आपका कोई भी प्लैनेट अगर ये ओन्ड करता है, मतलब ये लगना वाइज आपको देखना है, जैसे कि ये कोई भी प्लैनेट ओन कर रहा है। अब एरीज लगना है उसका, मानो कि वीनस यहाँ पर बैठ गया है, अदरवाइज आप बोलोगे कि वीनस यहाँ पर एग्जॉल्टेड है। इज इट राइट? वीनस इज एग्जॉल्टेड इन लिब्रा, विच इज अ गुड पोजिशन। बट इनके केस में वीनस इनको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा एज कंपेयर टू वीनस यहां पर देगा। इसका रीजन क्या है, आपका कोई भी प्लैनेट अगर केंद्र को ओन्ड करता है, तो इनके केस में एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड सैटर्न इनको ओन करेंगे। कोई भी आपके केंद्र को ओन करता है, तो आपको बेनिफिट्स 100% नहीं दे पाता है। इट विल नॉट गिव यू, एबल टू गिव यू 100% बेनिफिट्स। अदरवाइज अगर कहीं पर बैठा हो, अगर मानो कि किसी का 4 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है और मून उसका यहाँ पर है, तब ये ज्यादा पावरफुल पोजीशन होगी, क्योंकि उसको इतने ज्यादा रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, उसको 70% रिजल्ट्स मिलते होंगे या 60% रिजल्ट मिलते होंगे। इसको हम बोलते हैं केंद्रपति दोष। केंद्रपति दोष मीन्स एनी हाउस ओनिंग द केंद्र बिकम एग्जॉल्टेड, तो उसके वो जितने उसको रिजल्ट्स देने चाहिए थे 100%, वो 100% रिजल्ट्स नहीं दे पाता है। उस बंदे को उस हाउस पर काफी ज्यादा काम करना पड़ता है टू गेट द बेनिफिट्स। सो इसको आपको याद रखना है। तो अब हम मानते हैं कि एरीज लगना है आपके पास, और इनका जुपिटर योग कारक है। मानो कि कहीं पर भी जुपिटर और सैटर्न इनका साथ में बैठ गया, मानो कि यहीं पर इनका साथ में बैठ गया। जुपिटर इनका योग कारक है, योर ओन योग कारक सिटिंग इन द 10th हाउस, विच इज अ गुड पोजीशन। सैटर्न आपका 10th का लॉर्ड है, जो कि अच्छी बात है, आपके 10th में ही बैठ गया, इट्स अगेन अ गुड पोजीशन। बट यहाँ पर सैटर्न इसके केंद्रपति दोषा के अंदर भी आ गया है। तो अब जुपिटर और सैटर्न जब साथ में आते हैं किसी के भी बर्थ चार्ट में, इसका मतलब होता है कि लाइक पर्सन नीड टू, आपका लक, आपकी किस्मत और हार्डवर्क साथ में चलेगा। इज इट राइट? आपको सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं रहना है। आपकी किस्मत तभी चलेगी जब आप हार्ड वर्क करोगे। तो अब एरीज लगना वालों के केस में दे नीड टू पुट मोर हार्ड वर्क। अदरवाइज इनका योग कारक है जो कि 10th में बैठा है, इनको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ही सक्सेस मिलेगी, क्योंकि अब जुपिटर और सैटर्न साथ में बैठ गया, ऊपर से सैटर्न का यहाँ पर केंद्रपति दोष भी बन गया। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? हाँ जी। हाँ। Ma'am, if Jupiter is sitting in Capricorn, it will be debilitated. नाउ इन देयर केस, इनका जो मैलेफिक होता है, वो कौन कौन से प्लैनेट इनके मैलेफिक होते हैं? इनके जो प्लैनेट मैलेफिक होते हैं वो मरकरी होते हैं, वीनस होता है, और इनका सैटर्न मैलेफिक कैटेगरी में आते हैं फॉर द एरीज लगना। अब सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई भी मंगल का है, अगर कोई भी सबसे बड़ा दुश्मन अगर मंगल का है, तो वो मरकरी है। मरकरी इज अ बिगेस्ट एनिमी टू मंगल। क्यों? क्योंकि मंगल एक इम्पल्सिव प्लैनेट है, और मरकरी एक दिमाग वाला प्लैनेट है। तो एरीज लगना
एरीज लगना वालों के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा जो एरीज लगने की प्रॉब्लम होती है वो होता है इनका माइंड। इनका माइंड ही इनकी लाइफ की प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑफ देयर माइंड दे कम्युनिकेट नॉट सो वेल, एंड इनकी डेली लाइफ प्रॉब्लम भी मरकरी ही होती है। अगर एरीज लगना को अपने माइंड पर कंट्रोल आ गया, दे कैन हैव अ वेरी गुड लाइफ। और अगर इनको अपनी लैंग्वेज में कंट्रोल नहीं है, इनको अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं है, तब इनकी लाइफ में काफी ज्यादा मेजर इश्यूज आते हैं। बिकॉज दे माइंड इज ओनिंग द थर्ड इज योर कम्युनिकेशन एंड योर सेक्स। अब इनके केस में मानो कि इनका लगना लॉर्ड, इनका खुद का लगना लॉर्ड मानो कि मरकरी के साथ बैठ गया है। खुद का लगना लॉर्ड कहीं पर भी किसी मंगल खुद मरकरी के साथ बैठ गया है, जो कि एक दूसरे के एंटी है। एक फायर है जो कि बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेता है, जो कि लड़ाई झगड़े में लगा रहता है और अपना दिमाग यूज नहीं करता है। तो अब मार्स और मरकरी जब अगर साथ में इनके बर्थ चार्ट में आ जाएगा, देन दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लाइफ। बिकॉज क्यों, एक तो दोनों एंटी हैं, बंदा बहुत ज्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस लेगा, बहुत ज्यादा गलत डिसीजंस लेगा, एंड विल स्ट्रगल अ लॉट इन लाइफ। बिकॉज आपकी डेली लाइफ की जो इश्यूज हैं, जो आपका सिक्स्थ ओन कर रहा है और आपकी थर्ड है, तो इस केस में इनका मरने का भी रीजन बन सकता है मरकरी। मरकरी विल गिव देम द प्रॉब्लम, बिकॉज अब इसका कनेक्शन हो गया लगना लॉर्ड के साथ, जो कि उनका खुद का सिक्स को ओन कर रहा है, जो कि आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम है। तो इनकी लाइफ में अगर किसी के भी केस में मंगल प्लस मरकरी साथ में आ गया एरीज लगना वालों के लिए किसी भी हाउस में, दैट विल बी द मेजर लाइफ प्रॉब्लम। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका लगना लॉर्ड के साथ आपके सिक्स का लॉर्ड बैठ गया है। तो अब आपको कंट्रोल ही नहीं रहेगा आप बोल क्या रहे हो, हाउ यू स्पीच। वैसे भी माइंड डैमेज होता है। माइंड में इनके होता क्या है, माइंड में इनकी फायर होता है ना, एरीज है, माइंड में फायर है। मरकरी आपको लॉजिकल माइंड, लॉजिकल माइंड एरीज में मिसिंग होता है, बिकॉज इनका माइंड होता है फायर। इनको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लानी पड़ती है। बिकॉज मार्स का किसी तरीके से भी अगर एरीज लगना में मरकरी के साथ कंजेशन होता है, तो अब क्या करता है, इनको बिल्कुल ही डैमेज करता है। ऑलरेडी अपने माइंड से डैमेज्ड होते हैं, और ज्यादा इनको लाइफ में डैमेज करता है। क्लियर है? यस। हम्म। इनके जो मार्कास होते हैं वो इनका ये भी मार्कास होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इनके सेकंड और सेवेंथ बाय डिफॉल्ट सबके मार्कास होते हैं। तो एरीज लगना वालों का भी मार्का भी होगा। तो इनका जो मार्का होता है वो वीनस भी, इनका जो मार्का होता है वो वीनस होता है। तो मेजर जो इनको मारने वाला रीजन या प्रॉब्लम देने वाला रीजन जो होता है एरीज लगना का, इज अगेन द वीनस। तो अगर आपका मार्का का कंजेशन, अगर मार्का का कंजेशन किसी तरीके से वीनस के साथ, वीनस इनका सेकंड लॉर्ड को भी ओन करता है। अब मानो कि किसी इनका कंजेशन बन गया मार्स प्लस वीनस, इट्स अ गुड योग। अदरवाइज धन वाइज इट्स अ गुड योग, मनी वाइज इट्स अ गुड योग, बट हेल्थ इश्यूज देगा। क्लियर है? राजयोग देगा आपको मनी वाइज, बट आपको हेल्थ इश्यूज भी देगा। मार्का का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज देने का कारक। तो वीनस इनका हेल्थ इश्यूज भी देता है और इनको पैसा भी देता है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? यस मैम। या अगर मानो कि एरीज लगना एंड द मार्स इज सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस, मार्स इन द फिफ्थ हाउस अपनी दशा में, आपका खुद का लगना लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में बैठ गया, तो पहली चीज इसका मतलब क्या हुआ है, आपके कार्मिक है यहाँ। कार्मिक किसके साथ होंगे, अपने चाइल्ड के साथ। इज इट राइट? यस अपने मैम। खुद के चाइल्ड के साथ आपके कार्मिक होंगे। और आप इंटेलिजेंस होगी, आप पिछले जन्म से कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जीज लेकर आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मार्स फॉर द एरीज लगना इफ सिट्स इन द फिफ्थ हाउस विल यू गिव यू द नेम फेम सक्सेस, जॉय देगा, बट अनहैप्पीनेस फ्रॉम द चाइल्ड साइड। आपको जो अनहैप्पीनेस मिलेगी वो चाइल्ड साइड से मिलेगी। क्लियर है? तो आपके कोई कोई योग है जो आपको इंटेलिजेंट देते हैं, मनी देते हैं, बट अदरवाइज वो पेन भी दे सकते हैं। अगर मानो कि मार्स जुपिटर वीनस का कंजक्शन हो गया सेकेंड हाउस में, एरीज लगना, मार्स जुपिटर एंड वीनस का कंजक्शन हो गया सेकेंड हाउस में, कनेक्ट करो। लगना लॉर्ड सिटिंग इन द सेकेंड हाउस, एर्थ का लॉर्ड सिटिंग इन द सेकेंड हाउस,
नाइन्थ का लॉर्ड सिटिंग इन द सेकेंड हाउस, ट्वेल्थ का लॉर्ड सिटिंग इन द सेकेंड हाउस, सेवेंथ का लॉर्ड सिटिंग इन द सेकेंड हाउस। क्लियर है? तो अब आपको इसमें देखना है कि इन सब के लॉर्ड अगर आपके सेकेंड हाउस में बैठ गए, अगेन दैट विल मेक यू द राजयोग। राजयोग कैसे बनाएगा? आपका एक तो सबसे पहले लगना लॉर्ड आपका सेकेंड हाउस में बैठा है, मतलब कि पिछले जन्म से आप पैसे की एनर्जीज ला रहे हो। वीनस आपका खुद एग्जॉल्टेड जो आपकी इनकम का कारक है, वो खुद आपके सेकेंड हाउस में बैठ गया, अगेन यू आर कैरिंग द पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम द पास्ट लाइफ। जुपिटर आपका नाइन्थ का लॉर्ड, मतलब कि आपकी इनकम में आपकी किस्मत भी साथ देने वाली है। ट्वेल्थ का लॉर्ड यहाँ पर है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फॉरेन कंट्रीज से आपके पास इन्वेस्टमेंट आएंगे। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें अगर आप फॉरेन कंट्रीज में करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसा आएगा। तो एरीज लगना वालों के केस में अगर मार्स अगर आपका मार्स जुपिटर और वीनस तीनों आपके अगर सेकेंड हाउस में बैठते हैं तो इनको इमेंस वेल्थ देंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसको समझना है, आपको याद नहीं करना है बस। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार? नो मैम।